کہ جی یہ اگر ایسی بکواس کرے گا تو یہاں معاملہ خراب ہوگا. یہ دیکھیں جی, کیونکہ یہ بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں اس کے بیٹے نے لکھی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی اینک لگا کے پیغمبر اسلام کو یسوع دیکھیں یوسف صاحب, ابھی میں نے آپ کے گھر سے دکھا دیا کہ یسوع شراب پیتے تھے. آگے مجھے پوری بات کرنے دیں, مجھے یہ پورا حوالہ پڑھنے دیں, اس کے بعد آپ بولیں. آپ کل ہاں ایک ہی ہے حوالہ, ایک ہی ہے, ایک ہی ہے. بات تو یہ ہے جو ویب سائٹ آپ بار بار ہماری کہہ رہے ہیں یہ ہماری نہیں ہے. آپ کی ویب سائٹ ہے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ خوش دلی سے اپنی میں پی, خوش دلی سے شراب پی, یہ بائبل میں لکھا ہے. وضع 9 کی وضع باب 9 ہے آیت 7 ہے, بیان کرتی ہے خوش دلی سے اپنی میں پی. عامر بھائی آگے ہے 104. بتا رہے ہیں سمیر صاحب سمجھن رہے ہیں کہ انہوں نے براڈ کاسٹ آیا تو وہ شاید کو بہت بڑے سپر سٹار بن گئے. بہت شکریہ صاحب کو کال پہ لے لیں. احمد نذیر صاحب آپ خاموش رہیں, اگر آپ نے اس بات پر کرنا ہے تو میں ثناء اللہ امرتسری صاحب کا نکالوں حوالہ جس میں وہ کہتے ہیں یسوع شراب پیتا تھا. او ہیلو, نکالو ثناء اللہ امرتسری کا حوالہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یسوع گالیاں دیتا تھا. ثناء اللہ کا کوئی ذلی بروزی نکالو نہیں ہے, تو پھر آپ اس کا ذلی بروزی نبی کا دعویٰ آپ کا ہے, آپ اپنا جواب دیں. ثناء اللہ امرتسری کو کچھ مانتے ہیں آپ کے نہیں؟ ہم ان کو سچ بھی بولتا تھا کہ نہیں, جھوٹ بولتا تھا؟ مرزا قادیانی سچ بولتا تھا, بے شک سچ بولتے تھے. مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہوا ہے. یہ آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں. اگر آپ اینک لگا کر آپ ثناء اللہ امرتسری کو جوتے کی نوک پر رکھ کر اینک لگا کر تم رکھ رہے ہو. اچھا جی مائک لگاؤ گے, مائک لگاؤ گے, میں تمہاری ایسی کی تیسی بھیج دوں گا. اچھا تم بکواس مائک لگاؤ گے, تمہاری ایسی کی تیسی اور تمہارے یسوع کی ایسی کی تیسی. تمہارا یسوع شرابی تھا, زانی تھا, تمہارا یسوع شرابی, تمہارا یسوع زانی, تمہارا یسوع شرابی, تمہارا یسوع زانی, عورتوں سے مالشیں کروانے والا یسوع تمہارا. ثناء اللہ امرتسری دجال کذاب حرامی اس یسوع کو ماننے والے ہمارے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے. تمہارے یسوع کی ایسی کی تیسی, تمہارا یسوع دیکھو کہتا ہے شراب پیو, شراب پیو, شراب پینے والے. بلایا آپ نے سمیر صاحب, آپ نے یہ کرنے کے لیے بلایا یہاں پہ ہمیں کہ ہم مسیح کی توہین سنیں. مرزا قادیانی کذاب عمر وزیر ثناء اللہ امرتسری کذاب دجال, یسوع کذاب دجال, یسوع شرابی, یسوع زانی, یسوع شرابی, یسوع زانی, یسوع شرابی, یسوع زانی, یسوع شرابی, یسوع زانی, یسوع کذاب, یسوع دجال. ثناء اللہ امرتسری کذاب کا بچہ, دجال کا بچہ تھا, لعنتی حرام زادہ, گالیاں دینے والے نبیوں کو. اس مرزا قادیانی کذاب دجال کے بچے یہاں گالیاں دینے والے. تو دلہ یسوع حرامی تو ہی مبارک اور کسی احمد رضا بریلوی نے کیا تو حرامی مبارک بچائے مرزا دجال تے مرزا لعنتی سی حرامی. تسی یہی کام کرانا چاہتے ہو, چپ کر کے بیٹھے تانوں عزت راس نہیں آندی, بے شرمو. دجال کذاب مرزا قادیانی, دجال کذاب مرزا قادیانی, دجال ایک بات کہا ہے کذاب. سمیر صاحب کہا ہے کہ وہ 2 منٹ میں اپنی بات پوری کر لے, پھر ان کو مسیحیوں کو بات کرنے دیں, ان کو بھی 2 منٹ دیں. یہ تو نہیں کہ اس نے جلسہ سالانہ کی تقریر کرنی ہے 30 منٹ. اپنا موقف بیان کرے. اور جو آیت ابھی تک کوئی آیت آپ نے دیکھی ہے سمیر بھائی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع المسیح شراب پیتے تھے؟ ہم نے تو نہیں بائبل پڑھی, لیکن اس نے جو حوالے پیش کی اس میں کوئی نظر آیا آپ کو اس طرح کا حوالہ؟ اس کو کہو ایسا حوالہ ہے تو پیش کرے, سفیان بھائی کو اٹھائیں, جوزف صاحب کو اٹھائیں, وہ جواب دیں گے. وہ تقریر ہی کرنا شروع ہو گیا جیسے پتہ نہیں جلسہ سالانہ کی تقریر ہے. کوئی آیت ابھی تک اس نے پیش نہیں. کہتا ہے یہ ویب سائٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ ویب سائٹ بھی ہماری نہیں ہے. سے بھی ان کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی, آرام سے بات ہو رہی ہے. وہ سمیر بھائی بیچ میں بول رہے ہیں کہ رک جائیں, ان کی بات نہیں سن. ایسے یہ انجام آپ نے دیکھ لیا نا کہ مرزئی جو ہیں جب ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی, کوئی جواب نہیں ہوتا تو یہ توہین کرتے ہیں. اب یہاں پہ چلے ہم یسوع مسیح نہیں کہتے, لیکن وہ ان کے پیغمبر ہیں, ان کو نبی مانتے ہیں, اور جس طرح انہوں نے یہاں پہ توہین کی ہے, شاتمیت کی ہے, یہ آپ کے سامنے یہی ہے ان کی اصلیت. ان کو کہو بھائی سمیر بھائی, آپ ان کو کہو کہ 2 منٹ ٹائم دیتے ہیں آپ کو, بے شک ہمیں بھی نیچے اتار دو, لیکن اس کو کہو 2 منٹ میں وہ آیت پیش کرو بائبل کی جس میں یسوع کا شراب پینا ثابت ہو. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی بائبل پڑھی نہیں. اگر وہ ایسی آیت پیش کر دے
या कोई रेफरेंस दे दे, सबूत दे दे, उसके बाद इनको सुफियान साहब को और जोसेफ साहब को मौका दो, लेकिन 2 मिनट टाइम लगाएं घड़ी पे। ये नहीं कि जलसा सालाना की तकरीर करनी है। ਮਰਜ਼ਾ जोसेफ भट्टी साहब ਦਾ और ये समीर भाई वेबसाइट ने ਅੱਜ ਲਿਟਰਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ और ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡੈਕੋਰਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ चुप कर गए। ये है ही गालीबाज इनके पास है, गालियों के अलावा इनके पास है। ये इधर से उधर गया था, तब शोर शराबा शुरू हुआ तो मैं फौरन पहुंच गया और कोई बात कंट्रोल कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। उनको अगर उन्होंने कॉल डाली हुई है ना, उनको को भी 2 मिनट हम म्यूट कर लेते हैं, 2 मिनट टाइम है, सबूत दे दो। अगर है सबूत, नहीं है तो भी कह दो कि मिर्जा साहब ने ये कश्ती नूह में नाम तो ईसा अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ है, वहां पर यसू भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन साथ लिखा हो कि वो शराब पीते थे। तो सबूत दे दें जो भी उनके पास है। लंबी लंबी करने का क्या फायदा है? फिर इनसे भी इनको लेके इनका जवाब ले लें। क्या बाइबल में इन्होंने तो दावा किया है कि बाइबल में इस तरह की कोई भी बात नहीं लिखी हुई, बल्कि उन्होंने कहा हम उस पर लानत भेजते हैं जो ये कहता है कि यीशु शराब पीते थे। मैंने रिकॉर्ड की है वो बात सारी, तो इनसे भी जवाब ले लें। गालियां देने का क्या मतलब है? हाँ जी, सलाम सर। फलाना झूठा, फलाना झूठा। समीर साहब, आमिर साहब, आप माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी हैं। आमिर साहब आप बड़े भी हैं, तो आप मतलब कि इल्मी मजमून को आहिस्ता आहिस्ता ज़रा लेकर चलें। आप खामखा खुद भी गुस्सा खा जाते हैं और बाकी लोग भी भड़क जाते हैं। मतलब हम सो जाएं, ये तकरीर करते, ये मतलब आधा घंटा तकरीर करेगा ये आपका डिबेटर? नहीं, मिनट लगा लें, 1 मिनट या 2 हाँ, मिनट। यही मैं कह रहा हूँ, 2 मिनट, 2 मिनट लगा दें। 2 मिनट में जो हवाला पेश करना कर दे पेश। आपने झगड़ा कंट्रोल करना है। आप समझदार आदमी है यार। वो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का शुरू हो गया बात करने। हम तो कह रहे हैं कि अगर बाइबल से है ना, प्यार से आपका दावा है कि बाइबल में इस तरह की बात लिखी है तो सबूत पेश कर। सनाउल्लाह अमृतसरी ने झूठ बोला है। देखा ये फिर बकवास करने लगा है। मिर्जा कादियानी ने झूठ बोला है। समीर साहब देख लें, ये माइक लगा रहा है। अगर ये माइक लगा, तुम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के बारे में बोलोगे, मैं वही जवाब दूंगा जो तो वो कज़ाब था, दज्जाल था सनाउल्लाह अमृतसरी, लौंडेबाज था सनाउल्लाह अमृतसरी। जिस तरह यीशु लौंडेबाज का बच्चा, उसका बच्चा भी ज़ानी, कादियानी दज्जाल कज़ाब था, उसका 2 नंबर खलीफा भी तेरा ज़ानी। हरामज़ादे, तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी पे भौंकेगा? ओ भाई बस हो गया, चले गए, ठीक है, चला गया। इस मरज़ियत के पास और कुछ नहीं है। और क्या करवाना है? लगाई हुई है तुमने? नहीं, और क्या करवाना है? मिर्ज़ा कादियानी की जो ज़ुर्रियत है, ये ज़ुर्रियत ही है, कज़ाब और दज्जाल की ज़ुर्रियत है। अभी भट्टी साहब को उठाओ। और समीर साहब एक बात ये वाली भी नोट कर लें कि हमारी तरफ से, समीर साहब ये बात नोट कर लें कि हमारी तरफ से पहल अभी तक नहीं हुई। अभी तक पहल हमारी तरफ से नहीं हुई। जी वो डिबेट कर रहा, वो करे ना, दूसरे अंदर क्यों बकवास कर रहे हैं? जिस बंदे ने डिबेट करनी वो बोले, दूसरे इधर टीने लेने। ओ भाई, बात तो उसने उनसे क्रिश्चियनों से करनी है, गालियां वो आके मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को देने लग पड़ा है। यार मैं तुमसे बात नहीं करना है, मैं इस तरह जानी बंदे से मैं बात नहीं करना। मैं समीर से दज्जाल कज़ाब जो अब ये देखा है, अब ये देखिए जो इसने बकवास की है। मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब दज्जाल भौंक गया कुत्ते की तरह। वो दज्जाल ने जो कुछ किया है वो उसकी ज़ुर्रियत है। उसने दूसरों को इल्जाम ही लगाने हैं। बगारत का बच्चा ना होता। हेलो ए मिर्ज़ाइयत दी तलीम, ये देखें गालियां दे रहा है। ये अभी देख लो, ये मिर्ज़ा दज्जाल की फिर तालीम पेश कर रहे हैं। ये फिर मिर्ज़ा दज्जाल की तालीम पेश कर रहे हैं। तो इन्होंने दवाई पी हुई है, गालियां दे रहे हैं। आप ना जवाब दें अबू बकर भाई। इन्होंने मिर्ज़ाइयों ने आज 1 जनवरी के दिन इन्होंने दवाई पी हुई है, गालियां दे रहे हैं। इनको गाली का जवाब गाली से भी ना दे। हाँ, उलमा को गाली दे फिर हम देंगे। हमें जो गाली देते हैं आप जवाब ना दें। हमारे उलमा को गाली देंगे तो फिर हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे आइमा को गाली देंगे वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल तो सिर्फ इतना है कि अगर बाइबल में इस तरह की कोई बात है लिखी हुई, आप उनके मुंह पे मारो, क्रिश्चियनों के मुंह पे उनको जवाब देने दो। ये है तरीका बात करने का। समीर, मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ भाई? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हाँ, तो खामखा से मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का नाम, कभी मेरा नाम लेके गालियां देने का क्या फायदा यार? दोबारा इनको ले लें, इनको कहें भाई बाइबल में जो बात है, आपका दावा है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह शराब पीते थे, वो लाओ हवाला पेश कर दो। इधर उधर की बात ना करो। हमारे उलमा को गालियां दोगे, हम भी जवाब में देंगे, हम वो लौटा देंगे आपकी तरफ। इन्नमा नरुद्दु सब्बस्साबीना अला वजूहिहिम, यही आपके मिर्जा साहब की तालीम है कि जो गाली तू देगा वही हम तुझे वापस दे देंगे। हमारे उलमा को गाली ना देना,
हम अपनी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, ना उलमा की बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आइमा की, ना अपने नबी की, ना अज़वाज मुतहरात की, ना सहाबा की। उनको गाली ना दो ना। सबूत है तो पेश करो कि बाइबल में इस तरह की कोई बात लिखी हुई है, पेश करो। वो क्रिश्चियन इधर ही हैं, हम उनसे तस्दीक करवा लें कि क्या ये बात लिखी हुई है कि नहीं। जिस तरह आपके मिर्जा साहब ने लिखा है कि मसीह अलैहिस्सलाम वो गालियां देते थे तो वो आगे से हाथ से उन पर कसर निकाल लेते थे, वो हम पूछ रहे हैं, वो कहते इस तरह की बात ही कोई नहीं लिखी हुई वहां पर। तो झूठा कौन निकला? हमें कह रहे हो झूठा झूठा झूठा, फलाना झूठा, फलाना झूठा। दिखाओ बाइबल में कहां लिखा हुआ है कि मसीह अलैहिस्सलाम को वो मारते थे। यार एक मिनट नजर म्यूट कर। मसीह अलैहिस्सलाम पर तशद्दुद का कहां लिखा हुआ है? अंजाम आतम में आपके मिर्जा साहब ने कहा कि भाई ये गालियां देते थे, वो हाथ से कसर निकाल ले लेते। मैंने 2 बार पूछा, 3 बार इन क्रिश्चियनों से, वो कहते हैं कोई इस तरह की बात नहीं लिखी हुई। तो झूठ ही बोलता है ना, फिर इसको कबूल कर लो कि झूठ बोला है ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ले लेकर। समीर भाई आप लेना चाहते हैं तो उनको लें, अपने मुसलमान भाइयों की बजाय आप उनको लें और उनसे कहें कि बाइबल के हवाले से अगर आपके पास कोई आयत है तो वो पेश करें। नहीं तो आज मान लें कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब नहीं पीते थे और ना बाइबल में लिखा है और कुरान हदीस में तो लिखा ही नहीं है। कुरान हदीस तो उनको वामिनल मुकर्रबीन कहता है कि वो तो अल्लाह के मुकर्रबीन में से थे। कुरान हदीस में तो इस तरह की बात हो ही नहीं सकती। आपका दावा है कि बाइबल में इस तरह की बात लिखी है, अगर है तो वो पेश करें, हम भी देख लें। हम क्रिश्चियनों से भी पूछ लेंगे क्या इस तरह की बात उनकी किताब में लिखी हुई है। देखिए आराम से बात करते हैं, इल्मी गुफ्तगू करते हैं ताकि हम ये मौजू हल हो जाए, ठीक है। यस, लाने से कुछ नहीं हासिल होगा, ठीक है भाई। तो जी देखिए जमीर भाई मैं हवाला पढ़ता हूँ, किधर गया वारियर? ये देखिए लिखा है, फिर यसू ने इनसे कहा आप इनसे थोड़ा सा निकाल उस शख्स के पास ले जाए जिसके हाथ में दावत का इंतजाम है। उन्होंने ऐसा ही किया। जब दावत के मुंतजमीन ने उसको पानी को चखा तो वो मैं बन चुका था। मैं किन्नू आंदे जमीर साहब शराब नू आज तक तुसी भी कसम खा के दस दो किन्नू आंदे शराब, मैनू दसो। यो मैं बन चुका था, उसने दूल्हे को पिलाया। दरअसल दावत का मुंतजमीन ये नहीं जानता था कि मैं कहां से आई, लेकिन जिन खादमों ने मटकों से पानी निकाला था वो जानते थे, इसलिए उसने दूल्हे को से कहा हर मेजबान पहले अच्छी तरह मैं पेश करता है, फिर जब मेहमानों को नशा किदों चढ़ता है जो शराब चढ़ी हो अंगूरां दे नाल। कोई शराब नहीं बनती। ए सारी दुनिया सुन ले 102 बंदे हमेशा अंगूर पिए हुए कुछ ना होएगा जिन्ना तक ओदे च नशा ना होएगा। जमीर साहब इन्होंने चुको इन्होंने जवाब देन के कदी अंगूरां दे मैं ना शराब बन जाता बंदा डोलदा या की बनदा जिन नशा चढ़दा। हाँ जी दसो जरा आगे को दसिए। जब इसे मैं पेश करता ज्यादा नहीं अच्छी होती, लेकिन आपने अच्छी मैं रखी है। भाई ओ भाई आप चिल्लाते क्यों? आराम से बात करो ना। आप मुझे बता दें कि मैं जब चढ़ती है तो नशा होता है कि नहीं होता, मुझे बता दें। ये लिखा हुआ है कभी अंगूरों की शराब में अंगूर अगर खा लें या पी लें तो वो डोलते नहीं है। ये लिखा हुआ है कि नशा चढ़ गया और वो डोलने लगे। इसका जवाब आमिर नजीरी दे दे। ठीक है समीर साहब, आपने जितनी इबारत सुनी है इसमें आपने सुना है कि यसू ने शराब पी? यसुल मसीह ने? इधर बच्चे ना बने उनको बुलाएं। यार शराब पीने का यसूल अस्सलाम का शराब जिन्होंने पीने का शराब बना के मुआजिजा बनाया था, मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जट साहब अगर इसमें सुन तो लेना मेरे भाई, अगर आपके पास कोई ऐसा हवाला है जिसमें यह लिखा हुआ है कि यसुल मसीह शराब पीते थे या उन्होंने शराब पी, वो पेश करें मेरे भाई। बात सुने, इसमें लिखा है कि वो मोइजा, अच्छा वो जो नबी थे वो मोइजा करके शराब बनाते थे, बताएं मुझे साहब आप ही। अच्छा फिर ऐसे आप ऐसे करें ना, फिर मिर्जा साहब को ये लिखना चाहिए कि यसुल मसीह ने मोइजा दिखाया। सुनो आप उनको बुलाओ नीचे से अपने दोस्तों को, किधर भगा दिया उसको। अच्छा पहले आप हवाला तो पेश कर दो ना। अगर कोई बुला लेते हैं उनको, मैं उनको यार मैं फोन करके बुला लूंगा। पहले ये बताओ कि हवाला किधर है। नहीं आप तो मेरे ख्याल ना साइयों के एलची हैं, देखें ये क्या लिखा हुआ है। मैं यसु मसीह का एलची हूं मिर्जा साहब की तरह। आप उनको भी बोलने दे, ठीक है जी। नजीर जट साहब एक मिनट, मोइजा किया था, देखिए नबी इरफान साहब शराब बना देता है। इरफान साहब नबी है जो इरफान साहब आप खामोश तो ना, गुजारिश ये है सुन तो लेना। तुम बंद करो। अच्छा यार आपकी बात सुन ली ना, बारी बारी बात करनी है ना। बात यह है कि मिर्जा साहब ने जो बात लिखी है हम उस पे बात कर रहे हैं कि क्या यसू मसीह। मिर्जा साहब की तो यार ये बात चुप नहीं कर रहे। पहले उनको
लाओ। यार ये चुप नहीं कर रहे यार, चुप करें। जमीर साहब देखें प्यारे भाई, उन्होंने लिखा है कि ये मोइजा था, वो नबी मोइजा भाई, कर रहा था कि शराब बन गया। वो शराब मुझे बनाने बताओ, पर कौन सा बात नबी नहीं जो है, शराब मेरी बात बनाता है? सुन लेना। कौन सा नबी है जो शराब बनाता है? अच्छा ठहर जाओ ना, मैं बताओ, बनाने ये पर हमारा सुन तो ले यार, मोइजा- बात तो करने दे यार। गुलेल का किस्सा सुना रहे हैं वो गुलेल और जज का। साहब, देख, इरफान- ना 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 मुझे बता दे कि नबी मोइजा कर सकता है शराब बनाने का? यार बताओ वैसे इस बंदे की मैं पहले भी खूबी बयान किया कि ये तौहीन नहीं करता, बंदा अच्छा है, लेकिन इसको बात समझ नहीं आती। इरफान जट साहब, मैं बात समझने सुन की तो लो, बात है, ये बता दे, दो लफ्ज है, कोई बताता हूं नबी मोइजा कर सकता है शराब बनाने का? मुझे ये बता दे। हाँ मैं बताता हूँ ना यार, बात करने दोगे तो बताऊंगा ना, बोलने नहीं दे रहे आप। हमारा मौजू ये नहीं है कि शराब बनाई, हमारा मौजू जो मर्जी है, मुझे यार जब बोलने उनको नहीं दे रहा ये। क्रिश्चियनों को तो बताया था, बुलाया था, तो यही मौइजा था कि जट वो साहब- ऐसे कर दो, मुझे बता दे। जट साहब, यार, बोलने क्या तो दो मैं ना। चले जाता हूं, जमीर साहब, नहीं बात करनी तो अल्लाह हाफ़िज़। यार आपकी इतनी लंबी बात बात सुनी, आप नहीं करने दे ना रहे, जो चुप पता कर नहीं क्या। यार, चुप कर। इतनी लंबी आपने बात की है, हमने सुनी है। सवाल आज का सिर्फ ये है कि क्या बाइबल के मुताबिक, कुरान हदीस के मुताबिक नहीं, कुरान हदीस में तो कोई इस तरह हो ही नहीं सकता कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहीं शराब का जिक्र हो। बाइबल के मुताबिक क्या यीशु मसीह शराब पीते थे या मिर्जा साहब ने झूठ लिखा है? ये है सवाल। कश्ती नूह में जिसकी इबारत यहां पर आपके सामने लगाई गई थी, इसमें जो मिर्जा साहब ने लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम कहकर लिखा है, लेकिन आप कहते हैं कि लिखा तो ईसा अलैहिस्सलाम पर मुराद यीशु मसीह। ठीक है, मैं कहता हूं एक ही हस्ती है, एक ही शख्सियत है। क्या बाइबल में यह बात लिखी हुई है? बाइबल से अभी आपने जो हवाला पेश किया समीर भाई, आपने सुना इसमें कहीं जिक्र है कि यीशु मसीह ने शराब पी या वो शराब पीते थे? आपने सुनी है कोई इस तरह की बात? नहीं। हाँ, ये है सवाल। इनसे कहें कि प्लीज वो रेफरेंस लेकर आए जिसमें ये बात लिखी हो कि वो शराब पीते थे या उन्होंने शराब पी। शराब बनाई, मैं बनाई, मटका बनाया, उसमें मैं में क्या था? पानी था, शरबत था, अंगूरों का था, वो हमारा मौजू ही नहीं है यार, हमें उससे क्या लेना देना। वो मौजज़ा किस तरह का था? हमारा सवाल है कि क्या उन्होंने शराब कभी पी है? बाइबल में इस तरह की कोई बात लिखी हुई है? बड़ा दावा करते हैं ना कि मिर्जा साहब ने कहा है, बाइबल में ये बात लिखी हुई, वो कहाँ है लिखी हुई? हमें भी बता दो यार, हम बाइबल नहीं पढ़ते, पर आपका ये उज़र तो हम कबूल कर लें कि अगर बाइबल में इस तरह की कोई बात लिखी हुई है कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे, यीशु मसीह ने शराब पी, तो हम आज के बाद कम से कम ये तो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कुरान हदीस में तो नहीं है, लेकिन बाइबल में इस तरह की बात है। और भी बहुत सारी बातें हैं बाइबल के, हम नहीं उनको मानते उन बातों को, पर ये बात कम से कम एक नुक्ता तो क्लियर होने दो। अच्छा अमर भाई, आप अंदाजा करें कि क्रिश्चियन जो मसीही बरादरी के लोग हैं, उन्होंने भी इधर आके तो क्या बात की है और लोगों को अपना क्या अकीदा बयान किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह ये शराब जो है उनकी तरफ निस्बत गलत है और वो ये काम नहीं करते थे। यानी वो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी बयान कर रहे हैं। मुसलमान भी यही मानते हैं कि वो नाउज़ुबिल्लाह ऐसा काम करें, हो ही नहीं सकता। ये कादियानी क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये जोर लगा रहे हैं पूरा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह शराब पीते थे। तो इसी से वाज़ेह हो जाना चाहिए सुनने वालों को कि ये कादियानियत, अहमदियत जो है ये किस कदर बड़ी दुश्मन है अंबिया कराम की, उनके तकद्दुस की, उनकी पाकीज़गी की, उनकी तहारत की, कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी उनके दिफा में है। वो भी नहीं मानते कि हजरत ईसा, इवन के अभी जो आए थे भाई यहाँ सुफियान साहब, उन्होंने ये जो एक हवाला भी इन्होंने अहमदिया जमात के लोगों ने पढ़ के सुनाया है जिसमें वो कोई मैं बनाने वाली बात है, वो भी कहते हैं कि ये वो अल्कोहल शराब नहीं है बल्कि अंगूरों का रस है। मतलब उस एक मुबहम हवाले में भी खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो बनाई भी है, जबकि कादियानी जमात के लोग ना सिर्फ शराब बनाने का बल्कि पीने का भी इल्जाम ना सिर्फ मिर्जा साहब ने लगाया, ना सिर्फ ये लगा रहे हैं, बल्कि पूरा सर तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से साबित हो जाए कि नौज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे। तो मेरे ख्याल है सुनने वालों के लिए ये बहुत समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जमात अहमदिया अंबिया कराम के बारे में कैसे अकायद रखती है। काफ़ी है मेरे ख्याल से इतना। ठीक है, अगर सुफियान भाई ने कोई बात करनी हो इस पर जो उन्होंने हवाला दिया, हालांकि उसमें पीने का जिक्र तो नहीं है ना, क्या नाम है समीर भाई, लेकिन फिर भी वो मसीही भी उनको मानते हैं और उनका किताब भी उन्हीं के हवाले से कोई बात कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने कोई बात करनी हो तो उनको आप कॉल पे ले लें प्लीज, वो बता दें। ये तो बहरहाल इसमें पीने का जिक्र तो नहीं है।
یہ اعلان ہو جانا ہے آج کہ یہ مرزا صاحب کے پیروکار ناکام ہو گئے ہیں ایسا کوئی حوالہ پروڈیوس کرنے میں جس میں یہ لکھا ہو کہ یسوع المسیح شراب پیتے تھے. ہم نے بات صرف اس پہ کرنی، کیونکہ کشتی نوح میں لکھا ہوا ہے کہ یورپ کے لوگوں کو جو شراب کی عادت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے. شراب پینے کی بات ہے، نہ کہ میں بنانے کی یا مٹکوں میں وہ انگوروں کا رس بڑھانے کٹانے کی، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. شراب پینے کا کوئی ذکر، کوئی حوالہ ابھی تک ہم نہیں دیکھ سکے. اگر انہوں نے کوئی حوالہ دینا ہے یا وہ دے سکتے ہیں تو آپ ان کو دوبارہ کال پہ لے لیں. انہوں نے کال ڈالی ہے سمیر بھائی نیچے؟ ابھی تو بہت لوگوں نے کال ڈالی ہے یہاں پر. اس کو دیکھیں، عمران کالو کو دیکھیں یا عرفان جٹ کو، ان کو کہیں کہ یار وہ حوالہ پیش کریں نا. عامر بھائی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی لائیو لگا لیں تو وہاں پہ تسلی سے میرے خیال میں بات ہو جائے. وہ ہم کریں گے بعد میں، لیکن پہلے یہ تو کلیئر ہونا ان کے پاس حوالہ کون سا ہے. روز یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شراب پیتے تھے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا دوسری بات ہے، جو ویب سائٹ کھولی گئی ہے نہ تو وہ ہماری ہے نہ وہ ہمارے لیے حجت ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے جو مرضی معنی نکالے بائبل کے. جس طریقے سے وما قتلہ وما صلبہ کے مرضیوں نے معنی نکال لی ہیں، جو مرضی بندہ معنی نکال کے اور اپنی ویب سائٹ بنا لے. بھائی بائبل کی پوری تعلیم دیکھی جائے گی. اب دیکھیں انہوں نے ابھی تک کوئی حوالہ نہیں پیش کیا کہ خدا معاف کرے مسیح نے کوئی شراب پی ہو یا کوئی شراب بنائی ہو. کوئی حوالہ نہیں ہے. ہم حوالہ پیش کر دیتے ہیں کہ مرزا صاحب شراب پیتے تھے، باقاعدہ شراب کی الماری ان کے گھر کے اندر رکھی ہوئی تھی. کہیں تو حوالہ پیش کروں جی سمیر صاحب؟ الماری پوری ان کے گھر کے اندر رکھی ہوئی تھی. بہت کچھ ہے ان کے بارے میں، ہمیں وہ اس پہ بات نہیں کرنی ہے. ان کو یار کال پہ لیں، اگر ہے ان کی کال تو ان کو کہیں کہ یار بائبل کا حوالہ ہے تو لے کے آ جاؤ. نہیں بائبل کا حوالہ لیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ یسوع المسیح لکھا ہونا چاہیے تھا. ہاں صحیح ہے آپ کی بات، یہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن ان کے پاس نہیں ہے نا کوئی اس طرح کا ثبوت نہیں ہے، نہ یسوع کا نہ مسیح کا نہ عیسیٰ کا کہ وہ شراب پیتے تھے. وہ کیا کریں؟ مرزا صاحب لکھ گئے ہیں، ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. سمیر بھائی اس کی عمران کالوں کی کال ہے تو اس کو لیں، اس کو کہیں کہ ہمارے علماء کو گالی دینے کی بجائے تم ثابت کرو کہ بائبل میں کوئی آیت ایسی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ یسوع المسیح شراب پیتے تھے. اگر ہے تو وہ پیش کرو. نہیں انہوں نے تو کال نہیں ڈالا ہے ابھی تک. لیکن اور کون ہے؟ 1122 کی کال ہے، عرفان کی کال ہے، عرفان جٹ کی. کس کی کال ہے قادیانیوں میں سے؟ مسلمانوں کی کالیں اٹھانے کا کیا فائدہ؟ ان کو اٹھائیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہ ثبوت پیش کریں گے کہ وہ یسوع شراب پیتے تھے. وہ ادھر میں بائبل میں لکھا ہوا ہے. کہاں ہے وہ حوالہ؟ ثبوت کہاں ہے بائبل کا؟ پتہ نہیں ہے. ظہیر احمد آپ کے پاس ہے کوئی ثبوت بائبل سے؟ لکھتے جا رہے ہو میسج پہ میسج نیچے. ہے کوئی حوالہ؟ یہ جماعت احمدیہ سے ہیں، ان کو بلا کے پوچھ لیں. چلو ان کو کال ڈالتے ہیں. یہ ظہیر احمد جو ہے. اچھا ابھی تک عامر بھائی کوئی حوالہ نہیں پیش کیا گیا کہ خدا معاف کرے یسوع المسیح نے بائبل میں کیا اندر کوئی حوالہ نہیں پیش کیا، بالکل نہیں. اور اب کوئی قادیانی نہیں آ رہا اوپر. وہ کہہ رہے ہیں اپنی براڈ پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، یہاں سے دوڑ گئے ہیں سارے. ظہیر صاحب اس طرح کی کوئی بات بائبل میں لکھی ہوئی ہے؟ جی یہ جو لاسٹ سپر ہے اس میں حضرت عیسیٰ نے جب حواری وہ پی رہے تھے تو آپ نے حضرت عیسیٰ نے فرمایا یہ کیا پیتے ہو، اور آپ نے ان کے ہاتھ سے شراب لے کر پی. یہ ثابت کرنے کے لیے یہ تو ویل نون ہے. لاسٹ سپر گوگل کر کے دیکھ لو. ہمارے لیے نون نہیں، آپ پیش کریں. گوگل کر کے دیکھ لو یار. میرے بھائی سوائے ناظرین کے کوئی شخص، کوئی عیسائی بھی ایمان نہیں رکھتا کہ حضرت عیسیٰ شراب نہیں پیتے تھے. سب ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ شراب پیتے تھے. یہ فضول کی بات کرنے کی بجائے نہیں، سارے عیسائی بائبل میرے بھائی یہ ان کی سنت ہے. نصرانی حضرات کی یہ سنت ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ گوگل یہ جو لاسٹ سپر تھا وہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ نے گوگل میں تو مرزا صاحب کے بارے میں لکھا ہوا کہ وہ لیٹرین میں فوت ہو گئے تھے. آپ نے یہ دلیل مانگنی کیوں ہے؟ اگر آپ نے دلیل مانگ لی تو آپ تو ختم ہو گئے. اس لیے مانگنی ہے کیونکہ سن لینا آپ کے مرزا صاحب نے، سن لینا یہ پوچھیں. اچھا ان سے آدھی بات پوچھ مرزا صاحب نے کشتی نوح میں جو بات لکھی ہے اس وجہ سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ کیا مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے کہ سچ بولا ہے. اچھا اب اس کا جواب دیتا ہوں. ان سے صرف اتنی بات پوچھ لیں، کیا حضرت عیسیٰ نے حواریوں کو اپنے زخم دکھائے اور ان کا ہاتھ لے کر اپنے زخم پر پھیرے؟ صرف ان سے یہ پوچھ لیں. اس کا شراب سے کیا لینا دینا؟ میں بتاتا ہوں گا کیا ہے. کیا یہ درست ہے؟ یار شراب سے کیا لینا دینا اس کا؟ ہمارا سوال میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ختم ہو جائیں گے.
मुझे ये खुशी होगी कि आप खत्म हो जाएंगे। यार जब उसने हमें ये तुम जवाब खत्म दे करना दिया चाहते हो ना, ना, यार हमें जब खत्म आपने करना ये चाहते हो ना, मेरी जवाब, बात सुनो। जब उस बंदे वो ने मैं ये बताता जवाब हूँ दे यार, दिया ना कि हमें हजरत ईसा ने जब उनको ये साबित किया कि मैं जिस्म हूँ, जिंदा जिस्म हूँ, रूह नहीं, कैसे साबित किया था? सिर्फ इनसे ये पूछ लें। शराब पीकर बस साबित किया था। 100%, हेलो 100% उनको जख्म दिखाए, वो उनके कहाँ है हाथ लिखा पकड़ हुआ के है? अपने आप वो जख्म पे हवाला, देखे। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। बाइबल भरी हुई है, इससे ओ पूछ भाई लें, इस बाइबल बंदे से भरी पूछ हुई लें, है ये तो जो इसका हवाला आयत दे ले दें, आओ। हवाला दे दें, नसरानी ये बाइबल जो खुली है, बैठा मैं हुआ खोल है, लेता हूँ। इससे आमिर भाई, पूछ लें, आमिर भाई परी- से इससे पूछ हवाला लें। लें, मैं यहाँ बाइबल खोल के बैठा हुआ हूँ, जो हवाला मैं ये कहेंगे मैं जो यहाँ पे पढ़ के सुना दूंगा। वो देखिए बाइबल खुली हुई है, मैं हवाला कहता दे। हूँ, लास्ट सफर का मैं आपने लास्ट सिवाय सफर का हवाला का है, हवाले की तस्दीक कर दें, कहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सिवाय ईसाइयों के नाजरी भाई आप के हवाला दे दें, गूगल में साफ लिखा हुआ है हवाला कि दे हर दें, यार, गूगल के अंदर गूगल मिर्जा को साहब छोड़ टट्टी दो में मरे, यार। हवाला दें, ओ बाइबल यार में तुम ज़हीर वो साहब, ज़हीर हवाला दे साहब, दें, ज़हीर साहब मेरी आपकी बात तो- सुने ना, आपकी ज़हीर तो साहब सुन्नत है, बात तो आपकी तो सुनने वो दें। सुन्नत है। हवाला दें, कहाँ है? ज़हीर साहब आप लिखा म्यूट हुआ है। कर लें, आप वहां से लेकर मेरी बात सुने, गूगल से वो आयत नंबर लेकर वो बता दें कि फलानी मुझे नंबर ये बताओ, जब ईसाई हजरात अपनी खुशी का इजहार करते हैं तो शैंपेन के साथ टोस्ट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये उनकी सुन्नत है। यार समीर ये टोस्ट वाले हैं, करना, टोस्ट, वो शराब का बाइबल में टोस्ट लिखा करना, हुआ है, ये वो शराब भाई का बाइबल टोस्ट का करना वाला, इनकी ओ सुन्नत है। तन्नो अल्लाह चुके हो तो शराब का टोस्ट करना इनकी सुन्नत है। जो आप कर रहे हैं कि ईसाई इसलिए पीते हैं, यूरोप के लोग सॉरी ओ इसलिए हजरत पीते हैं। ईसा ने कैसे ईसा साबित अलैहिस्सलाम किया था नौजुबिल्लाह कि वो पीते थे। जिस्म है? और मिर्जा साहब ने भी तो यही बात की, आप भी वही बात दोहरा रहे मिर्जा साहब हैं, इजना ये करते सबूत थे हो ना, गया। नहीं मिर्जा साहब जना करते थे, इसलिए निदा और नसर के साथ जना हुआ है ना। ये मतलब इस तरह की फजूल बातों का क्या फायदा अच्छा है? आमिर भाई हवाला ले लें जी, ये अपनी तरफ से ये जो आया है ना लास्ट सफर का हवाला, करें जी, बड़ा करें, ये जरा हवाला बड़ा करें, पढ़ाओ जरा देख आपको। लें वो लास्ट सफर को, क्या चेक करना हवाला है ये शुरू कर देखें। देता हूं। और ये एक और सुनील झूठ भाई बोल बड़ी के खुश। गया है कि मसाया ने हाथ पकड़ के ना हाथ लगवाया, कोई हाथ नहीं लगवाया मसाया ने, झूठ कह रहा है, किसी जी, ने लिखते मसाया हैं। को टच नहीं किया। सुने जी, लूका 22 बाब उसकी 18वीं आयत, ये पढ़ देता हूं मैं यहां से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा, ये हेलो। क्या लिखा हुआ है जी, अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। लो जी, किधर है शराब यहाँ पे लिखा हुआ? यहाँ पर तो अंगूर का आप लोग शीरा लिखा अंगूर हुआ के है। शीरे को शराब कहते हैं आमिर भाई? नहीं नहीं नहीं, तोबा 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 तोबा। अच्छा वो ये खुदा की वाटर बहुत बड़ी साहब, नेमत है अंगूर का शीरा। जी ये वाटर इधर आप जवाब देंगे आपका, जी जवाब जी दीजिए। मेरे प्यारे भाई, मेरी भाई कभी दुनिया में किसी को अंगूर का शीरा पीते हुए देखा है? हाँ जी मैं पीता मतलब हूँ, क्या हम पीते बात है? हैं, मैं पीता हूँ, इसलिए आप माशाल्लाह ईद बड़े फसाई के सोने। ऊपर पीते हैं हम लोग। अच्छा ठहर जा, फिर 1 मिनट बात भी करने दिया करो। बात ये है कि जब आमिर भाई को हम कोई हवाला देते हैं कि सनाउल्लाह अमृतसरी ने ये कहा है, तो आमिर साहब मुकर जाते हैं, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। वरना सारा दिन सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना बटालवी करते रहते। आप क्रिश्चियन भाइयों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब आपको हवाला देते हैं, आप कहते हैं जी हम मुकर जाते हैं आप उससे भी। आप मुझे ये बताएं कि यार फिर हवाले देने का फायदा क्या, मांगते क्यों हैं? अच्छा मिर्जा आपको साहब ने बिल्कुल ठीक मौलाना ठाक हवाला सनाउल्लाह, दिया। मौलाना सनाउल्लाह जनाब, अमृतसरी, आपको सुन तो कालू साहब लें, ने बिल्कुल सही, ठहर जाए 1 सुन मिनट, तो लेना। भाईजान हमें भी बात पूरी कर लेने दिया करें। अच्छा कर लो। जब कालू ने आपको हवाले दिए हैं और बिल्कुल ठीक हवाले दिए, कौन सा वाला आपका दिया? कौन सा झगड़ा हो वाला गया। दिया? कौन सा वाला आपको दिया? गालियां दी अमृतसरी उसने? साहब का कहा, आप लड़ पड़े वहां भाई पे। अमृतसरी साहब जब- की तरफ से, अच्छा चलो मुकम्मल कर लो, मुकम्मल कर लो। ठीक है, वो मुसलमान नहीं थे, वो आपके अलामा नहीं थे, वो सच्चे बताता बंदे नहीं थे, मैं बताता ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ, अब आपको बाइबल के मैंने हवाले दिए हैं, मेरे सामने ये गूगल खुला हुआ है, आप कहते हैं जी गूगल हुज्जत नहीं है। जी गूगल हुज्जत नहीं है, गूगल पे सारे उसके बाइबल के हवाले हैं, चैप्टर वाइज मैंने आपको हवाले बताए, आप नहीं माने, ठीक है। अब आपको ये भी हवाला दिया गया कि अंगूरों का रस पिया और उसके बाद झूमने लगे, तो भाई कौन सा ऐसा अंगूरों का रस होता है जिसके बाद बंदा झूमने लग जाता है? तो बात ये है कि आप मिर्जा साहब की मुखालफत में ना अपने हर चीज से मुकर चलो जाते ठीक है, हैं। अब ये मातम तो छोड़ गोया दें, मुकरिया दलीलें एक आपकी सुन बराबर। लें, दलीलें आपकी सुन ली हैं, मातम को 1 मिनट की साइड पे रख दें। नहीं जी, पहली मैं बात तो मातम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब आपकी पूरे बात वाली सुनिए गड्डी में ना। पेट्रोल डलवा लें और अब शुरू हो खामोशी से सुनिए बात, अब बात सुने, आप भी सुन लें ना, मेहरबानी आपकी। पहली बात तो यह है कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने इस तरह की बात नहीं लिखी हुई जिस तरह की आप बयान करते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या मिर्जा साहब ने कश्ती नूह में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की तरफ से देखकर लिखा था? मिर्जा साहब ने तो इसलिए लिखा था कि बकौल आपके बाइबल में ये बात लिखी हुई है,
तो आपने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी की किताब क्या लिखा है यार एक मिनट से चुप कराओ। ओ भाई देखो, ओ भाई हेलो सारी लिखी है। समीर भाई चुप करें यार इसको। यार आपको किसने कहा बोलने की? मैं उसकी बात अच्छा है, सारी सेक्स स्टोरियां गंदगी भरी पड़ी ओ है इनकी बाइबल में। सारी चुप कर। गंदगी भरी है इनकी बाइबल के अंदर। ओए गालियां ना दे, गालियां वो भी फिर देंगे तुम्हारे ये लो, डिजाइन को। ये लो, ये ये लो, ये लो, ये लो। ये लाज होगा फिर ये- इसका। फिर अगर दूसरों की किताब को गाली दोगे ना तो वो भी तुम्हारे काबर को ऐसे ही गाली देंगे। फिर मैं क्या कहता फायदा हूं, आपको? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ओ ना रसूलुल्लाह बोल की इसको यार गंदगी नीचे। है, गंदगी। समीर भाई हमारा इसको नीचे कुरान उतारिए, पाक उनकी किताब को है, गाली दे रहा है। बाइबल में गंदगी है। समीर भाई ये उनकी लानती किताब ऐसे को करता गालियां है दे ना, रहा है। ये ओ लानती ऐसे करता है, इसका हाल ऐसा हो गया, ये पागल मरेंगे यार ये पागल, इनकी औलादें यार ये भी गालियां पागल दे रहा है मरेंगी। इसको। ओ हेलो इनका यीशु मर यार ये गालियां दे रहा है। आराम से ओ ये अपने बाप की औलाद है तो अपने ओ यीशु को साबित करे। यसूल मसीह वही हैं। साबित करे ना। मैं बताता हूँ, साबित करता हूँ। कौन है इसका? मैं बताता हूँ। चुप कर, मैं बताता हूँ। यसूल मसीह वही ईसा इब्न मरियम है जो सईदा मरियम सिद्दीका के कुरान बेटे हैं। की तरफ ना मुनाफिक इंसान, तू भी क्रिश्चियन है। ये लो भी ये यीशु गालियां साबित दे कर रहे। कुरान से। यार कुरान में गालियां- कहाँ लिखा है यीशु का? ओ यार गालियां यीशु में क्यों दिखा। देते हो? ओ यार गालियां मैं क्यों कह रहा हूँ देते हो? यीशु का कुरान से दिखा। हजरत अच्छा, ईसा मैं- अलैहिस्सलाम की तरफ ना जाओ। अच्छा चलो यीशु ठीक का है, दिखाओ कुरान से। चलो मैं दिखा देता हूँ। चलो यार देखते हैं कहाँ लिखा हुआ दिखाओ यीशु यीशु का। का। चुप यीशु करो। का नाम दिखाओ। अगर ना दिखाया तो फिर अच्छा भाई हदीसों से दिखाओ, जल्दी करो। लो भाई एक मिनट होल्ड रखना, मैं बताता हूँ। नहीं तो आज लानती आंबर आज के बाद लानती यार साबित ये होगा। अगर यार 5 इन्हें मिनट मार में देना। दिखाओ, जल्दी करो। चुप कर, उन्होंने क्या ना मैं दिखा देना फिर 23 वाला दिखाना जी। आहो ही मैं तो देखो भाई शाहरुख, ये इनकी कूड़े वाली गड्डी में जो पेट्रोल डलवाए ना, ये उसी की तरफ हो जाते हैं। कह रहा हूँ यीशु को कुरान से साबित करें ना। देखो ये बदतमीजियां कर रहे हैं। इस्लाम में यीशु को साबित कर, हदीसों में साबित कर यीशु कौन था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पाक नबी थे। फारूक साहब, मिर्जा ठीक है। कादियानी साहब की मिर्जा कादियानी साहब की किताब के 2 सफ़े पढ़ने हैं, मेरे साथ मुताला करना है उनका। और मताला चुप कर तू 2 मिनट। बात मुताला इससे हो करना रही है, है बात करने दे आराम के साथ। उसमें हाँ उसको पता चल जाएगा ना आपको लो भाई। कौन सी ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। लो भाई मुझे बड़ी स्क्रीन पे करना, मैं इसको दिखाऊं। फजूल लोग हो तुम, सारा दिन पागल हो जाओगे। ऐसे पागल होगे बुढ़ापे में, आपको धक्के अच्छा मारेंगे भाई अब लोग। चुप करें ना, मैं हवाला देने पागल लगा हो हूं यार आप आपको। लोग। सारा हवाला दिन देने। स्वाए आपको और बातें ही कोई नहीं आती। समीर साहब मौजूद हैं, तुम्हारी बड़ी स्क्रीन सारा करना दिन जरा। रूहानी खजाइन लेके बैठे रहते हो, पागल लोग। लो भाई ये देखना, ये यीशु की बात होने लगी है। हाँ फिर ये कहना किधर गया भाई यीशु वाला? हाँ यहां से शुरू होता भाई। अगर ये हमाकत नहीं तो और क्या। इसी वजह से खुदा ताला ने यीशु की पैदाइश की मिसाल बयान करने के वक़्त आदम को ही पेश किया है, जैसा कि वो फरमाता है इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलकहू मिन तुराबिन सुम्मा काला लहू कुन फयकून। लो जी ये है वो यीशु जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। यीशु की पैदाइश की मिसाल सुन तो लेना, यीशु की पैदाइश की मिसाल कुरान में मौजूद है। ये कुरान में मौजूद है यीशु की पैदाइश की मिसाल। कह रहा हूँ बात हो गई है आपकी। हाँ जी हो गई। सही है। ये जो अरबी में आपने ये इबारत पढ़ी है, इसमें नाम यीशु आ रहा है या हजरत ईसा का आ रहा है? यीशु का आ रहा है, यीशु का। ये इबारत में जो कुरान पाक में नाम आ रहे हैं वो हजरत हाँ। ईसा का आ रहा है या यीशु का आ रहा है, ये बताओ। यीशु की पैदाइश का जिक्र है ना इसमें। मैं कह रहा हूँ कुरान में ईसा का नाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आ रहा है या यीशु का आ रहा है, ये बताओ। यीशु की पैदाइश का जिक्र है, यीशु की पैदाइश का जिक्र। मैं कह रहा हूँ यीशु को मानते हो, फिर इसका मतलब है क्रिश्चियन हो। वो क्रिश्चियनों को जवाब दिया जा रहा है, मुनाफिक को। इसीलिए मुनाफिक बोला जाता है। फिर बोलते हो गाली देते हो, गाली नहीं देते यार, क्योंकि तुम लोग हक को छुपाते हो। तुम इस्लाम के ऊपर जो है ना एक बोझ बने हो। यार नहीं गुस्सा नहीं मैं कर रहा, यार गुस्से में ना इंसान को आता है। जब कुरान में
अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लिखा है, कुरान में इब्ने मरियम आया है, तो हक को क्यों छुपाते हो? अच्छा ये यीशु, अच्छा क्रिश्चियन किसको मानते हैं? अच्छा ये यीशु को मानते हैं। अच्छा ये बता दो कि ये यीशु का मानने वाला हूँ, ये यीशु की पैदाइश का जिक्र है। यीशु का मानने वाला हूँ। अच्छा बोलो, मैं बात को छोड़ दूंगा। ये यीशु की पैदाइश का जिक्र है कि ईसा की पैदाइश का जिक्र है इस आयत में? मैं कह रहा हूँ, आप आमर साहब आप बोल दे, मैं यीशु को मानने वालों बोल दे। इस आयत में यीशु की पैदाइश का जिक्र है कि ईसा की पैदाइश का जिक्र है? लानत है तुम्हारे पैदा होने, जिस दिन तुम पैदा हुए और जिस दिन तुम मरो, दोनों पे लानत है। इन्हें नहीं बचना है, इन्हें ले जाओ। कुरान की समीर भाई, आयत बयान की जा रही है, उसमें दरवाजे नाम के आगे क्या की है? एम्बुलेंस खड़ी है। कुरान की जो आयत बयान की जा रही है उसमें नाम क्या है? ऊपर तो मिसाल दे रहे हैं, मिर्जा साहब मिसाल दे रहे हैं, तो वो यीशु का क्रिश्चियनों का है। हम तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। कुरान में जो आयत, ये कुरान में यीशु के बारे में, इधर, अच्छा कुरान में यीशु की पैदाइश की मिसाल नहीं है? हजरत ईसा लिखा है, हजरत ईसा लिखा है। यार कुरान में यीशु की पैदाइश की मिसाल नहीं है ये। ओ शाहरुख साहब, उनको भी तो बोलने दो ना यार। इंसान आपसे बड़े जाहिल, आपसे बड़े हम जाहिल है, जो आप जैसे जाहिल मुनाफिक और बगैरत लोगों के साथ बैठ जाते हैं। लो भाई ये गालियां आप देने लग लोगों पड़े की यार। शक्ल को देखना और आपको देखना जो है ना, कसम यार खुदा जो भी की, अहमदी आता है अपने गाली से देता है नफरत हो समीर भाई। जाती है। समीर भाई जो भी अहमदी आता है वो ऐसे गाली देनी मुनाफिकों शुरू को कर देखते देता हैं है। ना, कसम से मुझे अपने आप से नफरत हो जाती है। ऐसे लानती लोग हो आप, कमेंट इस्लाम के ऊपर बोझ बने हैं। शाहरुख साहब इस तहरीर पे तो कमेंट ही कोई कर दो, कोई कमेंट पास कर दो। ये मिर्जा साहब ने सच लिखा अगर कि अपने आप तो नफरत हो वेंदी है तो खुदकुशी कर ले। हाँ शाहरुख साहब ये तो बताओ, मिर्जा साहब ने सच लिखा कि झूठ लिखा है? ये यीशु की पैदाइश की बात सही है कि झूठ है? जाहिल इंसान जब किसी को जवाब दिया जाएगा, मिसाल के तौर पर जुनेद का भाई है, क्या उमैर लगा लें, सही है, जुनेद का भाई है उमैर, मैं उमैर को एक खत लिख रहा हूँ, तो क्या वो खत लिखने की वजह से उमैर का नाम मैं खत में लिख रहा हूँ, क्या वो उमैर हमारा हो जाएगा, मेरा भाई बन जाएगा उमैर? वो उमैर नहीं जुनेद बनेगा। का तो भाई ये है, मेरा नहीं ये है। मिर्जा साहब क्रिश्चियनों को, मिर्जा साहब, हाँ शाहरुख साहब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ आपका नुक्ता, आपका नुक्ता समझ गया हूँ। जान छोड़ो शाहरुख साहब मैं आपका नुक्ता समझ गया हूँ। मुझे एक और बात समझा दें कि ये मिर्जा साहब ये ईसाइयों के यीशु की कुरान से मिसाल दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ईसाइयों के यीशु की पैदाइश का कुरान में जिक्र है, ये कह रहे हैं। यार ये कैसे इंसान है मिर्जा साहब? खुदा के बंदे जो हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं ना, सही है। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बात आराम से मेरी बात सुन लो, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो उनके बाद ये क्रिश्चियन बिगड़ गए, सही है। उनके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इन लोगों ने सारी तलीम को बिगाड़ दिया, सही है। हस्ती तो वो एक है, सही है, हम मानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, बनी इसराइल की तरफ भेजे गए थे, मगर जो है तो ये यीशु जो नाम है तो उनकी तरफ इन लोगों ने मंसूब की है, तो जारी बात है। तो हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आया, ईसा मरियम आया, तो जो जवाब है तो वो यीशु को देंगे ना, जो इनका फर्जी यीशु है। ये फर्जी यीशु कहाँ से आ गया है? सबूत देना आप। ये फर्जी यीशु कहाँ से आ गया है? ये शाहरुख साहब यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझाऊं। ओ यार आप भी यीशु को खुदा मान ले, जान छोड़े, आप भी अच्छा ठीक है, करते ही हैं, तो थोड़ा सा अच्छा आपका यीशु जो था उसने तो खुदा होने का भी दावा किया है। मुझे ये बताएं कि मिर्जा साहब क्या ये कह रहे हैं कि ये ईसाइयों का वाटर भाई छोड़े यार इनको, ये और यार बात तो सुन ले, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा तो ना करें ना, आराम से बात तो सुन ले। बैठा है, इसको 4 फूल चाहिए सिर्फ। हो जो बात आपने की है वो समझने तो देना, हमें मौका तो खाना पड़ जाता है। अच्छा गालियां बाद में दे लेना, पहले ये तो बताओ कि ये मिर्जा मैंने कौन सी गाली दी है? मैंने पूरी टिकटॉक को चैलेंज है, मैंने कभी किसी को माँ बहन की गाली दी हो ना तो मैं ईमानदार हूँ। अच्छा ठीक है, ये गाली है ना, आप ये करते हैं वो करते हैं, ये गाली होती है। बांदर और सूर इसलिए बोला जाता है, बांदर और अच्छा शाहरुख साहब आप ये तो बता दें कि फिर मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि ये कुरान में हमारे प्यारे शाहरुख साहब ये बात तो बता दो, 1 मिनट बात तो सुन लो।
आप बांदर चलो और अच्छा सूर बात हो। तो सुन लो एक मिनट, नबी अगले पाक की भी सुन सल्लल्लाहु लिया अलैहि करो या हदीस है। जबरदस्ती फिर ये आप मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अच्छा आप ये तो बांदर और बता दो कि सूर ये हो। मिर्जा साहब ने जो लिखा है आप ये बांदर और ईसाइयों सूर के हो, बांदर यसूफ और के सूर। बारे में ये कहा है कि कुरान क़यामत में के उनकी मिसाल नजदीक मौजूद है। उलमा जमीन पर बांदर और सूर होंगे। एक मिनट आ गया, मैं आ गया, चलो बस करो के भाई। नजदीक उलमा बांदर और सूर होंगे, ये हदीस है। देख लो जी अब मैं ये कौन बंदा सी क्या गाली कर दे रहा रहा है। हूँ? देखें समीर साहब, हम आपके तरह नहीं करना चाहते, अगर हमने भी आपका तरीका अख्तियार कर लिया ना हम आपको बोलने नहीं देंगे। जाओ चलो। तमीज से बात कर ले करो, हद हो गई अभी। हलाल आया है, उधर से गल कर पाई गालियां आते देना हैं अपनी जो है तकरीर झाड़ के निकल जाते हैं। सिंपल सा सादा सा सवाल है कि भाई यसू का जो ये जिक्र कर रहा है मिर्जा कादियानी के कुरान में है, ये बात उसने सच लिखी है कि झूठ लिखी है, इस पे बता दे। ये तो इतना नहीं बोला जा रहा कि झूठ बोला है, ये बस बोल रहा है। वैसे अभी तक कुछ मेरे ख्याल में 7 या 8 मर्दई आए हैं, उनमें से कोई एक ऐसा आया जिसने गाली नहीं दी। गाली तो सबने दी है। क्यों समीर भाई, गालियां तो सबने दी हैं, कोई मिस कर गया बीच में? गालियां नहीं दी किसी ने? सबने दी, सबने गालियां दे रहा है। सबने दी। और जितने भी आए हैं सब ने साबित, ये जो हैरान कुन बात है कि साबित, हैरान कुन तो खैर हमारे लिए तो नहीं है, सुनने वालों के लिए होगी, कि सब ये साबित करने की नाकाम कोशिश करते रहे कि नाउज़ बिल्ला ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शराब पीते थे। बाइबल के हवाले पहले ये कुरान है, इसके साथ ही सिर्फ ये नहीं करते कि कुरान पाक की आयत का गलत मतलब मफहूम बताते हैं, अहादीस पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये बाइबल को भी नहीं माफ़ करते। बाइबल की भी इबारत लेके, जिन इबारत से खुद क्रिश्चियन, जिनके बारे में मिर्जा साहब कहते हैं कि यूरोप के लोग बहुत शराब पीते हैं, वो भी नहीं मानते इस बात को कि बाइबल के वो जो एक मुबम सा वाला है उससे कोई ऐसी बात साबित होती है कि उन्होंने अल्कोहल वाली शराब बनाई भी थी, बनाने के भी वो इनकार करते हैं, वो नहीं मानते। और ये जो नाम निहाद खुद को सच्चे इस्लाम के ठेकेदार कहते हैं, इनका सारा जोर ये था कि, और हर कादियानी ने आकर यही जोर लगाया कि किसी तरीके से साबित हो जाए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह शराब पीते थे। तो ये तो इनका अंबिया कराम के बारे में अकीदा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर पैगंबर के तकद्दुस पर इन्होंने ना सिर्फ हमला किया है बल्कि उस अपने हमले को साबित करने के लिए फिर अल्लाह के कलाम और बाइबल से, कुरान से, हदीस से जुल्म करके उनको साबित करने की भी कोशिश करते हैं। इससे बढ़ के जुल्म और क्या होगा? अभी भी सुनने वालों को अगर समझ नहीं आती कि इस कम्युनिटी के अकायद क्या हैं, और फिर इनको घबराते भी हैं, वाजे आके ये भी नहीं बोलते कि हाँ हमारा अकीदा है कि वो शराब, घबराते भी हैं। क्यों घबराते हैं? असल में ये चाल है इनकी, घबराना इस वजह से नहीं है कि डर खौफ है, इस वजह से है कि चूंकि इन्होंने वरगलाना मुसलमानों को है, मुसलमानों में से बोले बाले लोगों को अपनी जमात में लाना है, तो वो जब अंबिया कराम के बारे में सरी इस तरह की गुस्ताखाना बातें ये कबूल कर लेंगे तो लोग तो ज़ाहिर नफरत करेंगे इनसे। अल्लाह ही है जी, हिदायत दे जी इनको, क्या कह सकते हैं। भाई समीर भाई, हमने तो किसी से कोई ज्यादती नहीं की है ना, हमने तो किसी से पहल नहीं की है, किसी से ज्यादती नहीं की है। आपने बहुत अच्छा रन किया ब्रॉड को। जब मैं आया था तो यहाँ पर 7-8 बंदे थे, अब एक 7-8 बैठे हुए थे। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन ये बदोबदी गालियाँ दे जाते हैं, हाथ से स्लिप हो जाते हैं और गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो कुछ इनके मिर्ज़ा साहब ने किताबों में लिखा हुआ है ना, उनका जवाब है ही नहीं इनके पास। जब मैं आया था तो आप यही बात इनसे पूछ रहे थे कि कश्ती नूह में जो मिर्ज़ा साहब ने बात लिखी है कि यूरोप के लोगों को शराब की आदत इसलिए है कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे माज़अल्लाह, वो बात आप देख लें कितना टाइम गुजर गया। मेरे ख्याल 3 घंटे होने वाले होंगे, मेरे पास 6:30 हो रहे हैं, तो 3:30-4 बजे का वाक़या होगा जब आप पूछ रहे थे। तो जवाब ये नहीं दे सके, बल्कि एक आया, उसने बड़ा कंप्यूटर खोला, मैंने कहा इसके पास कोई हवाला होगा जो ये दावा करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बाइबल में कोई इस तरह की बात लिखी हुई है कि वो शराब पीते थे। तो वो कंप्यूटर खोल के तो वो भी कहता है ये वेबसाइट है इनकी, तो इस वेबसाइट पर भी इस तरह की बात लिखी हुई है कि वो उन्होंने मैं बनाई या मैं वाले मटके थे तो उनका मौजज़ा दिखा दिया। भाई वो तो हमारा मौजू ही नहीं है, हमारा तो मौजू था वो वाला जो हम बार बार पूछ रहे हैं
کہ کیا کشتی نوح والی بات مرزا صاحب نے سچی لکھی ہے یا جھوٹ لکھا ہے؟ جواب دے نہیں پائے. اہم موضوع یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیے جہاں پر مرزا صاحب نے یہ لکھی ہے یہ مسلمانوں کو خطاب کر کے لکھی ہے، ٹھیک ہے، ایک نصیحت کے لحاظ سے کہی ہے مسلمانوں کو کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام پیتے تھے، ہمیں پینا نہیں چاہیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی الزامی جواب یہاں پر بنتا ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ شراب پینا گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی مسلمان یہ بات تو نہیں مان سکتا. اب ہم جتنا بھی سوچے اس بات کا جواب ہے ہی نہیں بھائی، کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا. لاجواب ہو گئے آج، نہ صرف وہ لاجواب ہو گئے ہیں بلکہ یہ بھی بات کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جو بائبل کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں، بائبل میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. آپ نے دیکھ لیا نا، بائبل سے بھی کوئی حوالہ پیش کرنے سے یہ قاصر رہے. جب میں پوچھتا ہوں تو وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو اور مجھے گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ میں نے پوری کی گفتگو سنی ہے. میرے پاس سن 1901 کی جو اصل اس کی کشتی نو ہے وہ موجود ہے میرے پاس لائبریری میں، وہاں پاکستان میں ہے، یہاں تو نہیں میرے پاس، تو کہیں ہوگی وہاں. اور میں نے یہ عبارت وہاں بھی پڑھی ہے اور روحانی خزانے کے اندر بھی یہ عبارت ظاہر بات موجود ہے، یا نئے ایڈیشن میں یہ نکال دیں گے. یہ بالکل عبارت اسی طرح ہی ہے. یورپ کے لوگ جو شراب اس وجہ سے پیتے کرتے عیسی علیہ السلام استغفر اللہ شراب پیا کرتے تھے، تو خود کوکو وائن پیتا تھا اور اپنی حالت اس کی خراب تھی. میرا خیال ہے کہ کچھ عبارتیں جو ہیں یہ مخبوط الحواس تھا، جس حالت میں نشے کی حالت میں لکھتا تھا یا لکھواتا تھا یا اس سے لکھوائی جاتی تھی. تو اس نے کم از کم انبیاء علیہ السلام کی جو شاتمیت کی ہے یہ بھی نہیں دکھا سکتے. یہ جو کفر کی، یہ کفر ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں شاتمیت کرنا، انبیاء علیہ السلام کی اہانت کرنا اور انبیاء علیہ السلام کا استہزاء کرنا، مذاق کرنا، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ انبیاء کا ادب تو ایمان کا جز ہے. انبیاء علیہ السلام کے متعلق بات کرتے ہوئے آدمی کو کم از کم چناؤ کا، اگر آدمی کی زبان جو ہے سبقت لسانی کے وجہ سے بھی اگر کہیں تھڑک جائے تو ہم دوست احباب فوراً کہتے ہیں اس ڈیبیٹر کو کہ بھائی توبہ کر، ہو جاتا ہے انسان. لیکن یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، جو لکھا ہے اس نے غلط لکھا ہے، کیونکہ اگر کہتے ہیں یہ غلط لکھا ہے تو اس کی ساری قادیانی کا جو محلہ ہے وہ سارے کا سارا گرتا ہے. تو اپنی ضد، ہٹ درمی اور بے شرمی اور منافقت اور عتل بعد ذالک زنیم کی جو جراثیم ہے ان کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں 100 سال ہو گیا کبھی کسی نے تردید نہیں کی. 100 سال سے زیادہ عرصے کے اندر کسی مرزائی نے یہ اس بات کی تردید نہیں کی، حالانکہ کسی بائبل کے اندر، کسی کتاب کے اندر یہ موجود نہیں ہے. دیکھو، اگر کسی جمعے کے خطبے میں کوئی مولوی صاحب منبر پر چڑھ کے یہ کہے کہ او مسلمانوں سنو، میں آپ کو ایک نصیحت دینا چاہتا ہوں، تو لوگ کہیں گے دو بھائی نصیحت، کیا بولنا چاہتے ہیں مولانا صاحب؟ اور وہ یہ کہے کہ مسلمانوں سنو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ، ہمیں پینا نہیں چاہیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیتے تھے. تو مسلمان تو ان کو روکے گا نا کہ غلط بات کی آپ نے بھائی، ٹھیک ہے؟ روکے گا نہیں. جس طرح ٹیمپریچر ہائی ہے، میرا خیال ہے کہ اس مولوی صاحب کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا، جمعہ نہیں اس کو پڑھانے دیں گے لوگ. روکے گا نہیں، ٹھوکے گا اس کو. ہاں جی، کڑکہندی شروع ہو جائے گی وہاں پر. ساتھ میں انبیاء علیہ السلام کا ادب کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بالکل بالکل. اور دیکھیے میرا عادت یہ ہے کہ میں سامنے نہیں دیکھتا ہوں کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. حق جس کی طرف ہو میں ادھر ہی اسی کا ساتھ دیتا ہوں. یہ میں نہیں دیکھتا کہ میرا بھائی ہے یا میرا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ حق کی بات ہے بھائی، یہ سوال ہے، اس کا جواب نہیں بنتا. کوئی نہیں، تو یہی کہتا ہے نا، قرآن یہی کہتا ہے نا، لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. اللہ کہتا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، اور اگر تمہیں حق کا پتہ اس کو چھپاؤ نہ. اب
वाज़े क्या तौर हुआ? पर जो मिर्जा कादियानी का ये कुफर है, उसने मेरी आवाज कट रही थी। जी जी मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ, इस वजह से आवाज कट गई है जी। जी, बोले बोले, आप बात करें। मैंने बात कर ली है, बस जितनी मैंने कहनी थी कह दिया। मेरे नमाज पढ़ाने का टाइम हो गया, मसरूफ है थोड़ा सा। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलो ठीक है ज़िया भाई, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे पर्सनल बात करेंगे। जज़ाकल्लाह। मैं भी अब इजाज़त चाहूँगा, जाते जाते हम मुसलमानों का जो कुरान पाक में अंबिया कराम के बारे में और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म फरमाया वो ज़रा सुन लें, फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला सूरह मोमिनून है, अल्लाह ताला अंबिया कराम का ही तज़किरा फरमा रहा है यहाँ पे। वलक़द आतैना मूसल किताब लअल्लहुम यहतदून। आगे वजअलना बना मरियमा व उम्महु आयतन व आवैनाहुमा इला रबवतिन ज़ाति करारिन व मईन। जी, ख़ुसूसन यहाँ पे हज़रत ईसा इब्न मरियम का जिक्र है कि उनको, पहले मूसा अलैहिस्सलाम का भी है कि उनको और उनकी वालदा को पनाह दी एक ऊंची रहने वाली जगह, रहने के काबिल जो जगह थी जिसमें चश्मे वगैरह बह रहे थे। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहन, कि अल्लाह ताला ने तमाम पैगम्बरों को ये हुक्म दिया कि ए पैगम्बरों खाओ तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ें। तो अल्लाह ताला ने पैगम्बरों को सिर्फ पाकीज़ा चीज़ें जो हैं वो खाने का हुक्म दिया है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई पैगम्बर ऐसी किसी चीज़ के पास भी जाए जो पाकीज़ा नहीं है। और शराब को अल्लाह ताला ने रजस और शैतान का अमल करार दिया है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जमी उलमा अंबिया कराम, किसी के बारे में शायबा भी नहीं किया जा सकता कि वो किसी ऐसी शैतानी अमल के पास भी गए हों। तो ये कुरान पाक ने हमें बताई है तालीम, और यही मुसलमानों का अकीदा है। कादियानियों का क्या है वो सब लोगों ने सुन लिया जी। ज़िया भाई एक छोटा सा सवाल कर सकता हूँ जाने से पहले? जी जी ज़रूर। एक छोटा सा सवाल ये है कि जो अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो बकवास ये कर रहा था कि उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है और आपने कहा था कि मैं 5 लाख इनाम दूंगा अगर ये बात वहाँ से निकाल दो, उसकी ज़रा तफसील बता दें अगर आप जानते हैं। देखें, मैंने इमाम अहमद रज़ा खान साहब की जो है वो इतनी लंबी चौड़ी कुतब हैं, इतनी बड़ा उनका लिखा हुआ लिटरेचर है, बहुत ही बड़ा है। आप ये देखें कि सिर्फ उनके फतावा रिजविया की 30 जल्दें हैं, 30 और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी है एक एक जल्द उनकी। मैंने तो नहीं पढ़ी हुई सारी, लेकिन असल मामला ये है कि एक आलम दीन, जैसा कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आलम दीन तो नहीं है ना, आम लोग हैं, आम मुसलमान हैं, कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पे चलने की कोशिश करें। आलम दीन नहीं है हम, लेकिन हम भी ये जसारत नहीं कर पाते कि नाउज़ बिल्लाह हम अंबिया कराम तो बहुत ऊंची हस्तियां हैं ना, हम सहाबा कराम या अहले बैत अतहार के बारे में या किसी अपने अकाबर के बारे में भी कोई इस तरह की बात करें कि वो शराब पीते थे, हम जसारत नहीं कर सकते। तो एक आलम दीन जो है वो कैसे ये बात लिख सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह शराब पिया करते थे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इल्म मुझे नहीं है उनके सारे लिटरेचर का, लेकिन ये कन्फर्म बात है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी 100%। किसी आलम दीन से भी आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो इस तरह की बात को लिखें कि हज़रत ईसा, हाँ अगर वो इस तरह की बात करते हैं कि जो बाइबल में बातें लिखी हुई हैं इल्ज़ामी तौर पे ये कह कर के देखें आपकी बाइबल में ये लिखा हुआ है, इस हद तक तो जायज़ है, इसको इल्ज़ामी जवाब कहते हैं। लेकिन अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट पास कर देना, और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो बाइबल में भी नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ कि वो शराब पीते थे। अगर कोई बंदा ये कहकर भी उनकी तरफ बात मंसूब करता है कि बाइबल में ये लिखा हुआ है तो वो उसकी गलती है। जैसा कि मुफ्ती मुबशर शाह साहब की अभी ऑडियो, उनसे हम पूछेंगे, उनसे कोई सबकत लिसानी हुई है या क्या मामला है मुझे नहीं पता, लेकिन अब हकीकतन अगर ऐसी बात हो, ये आजकल AI जो है ना ये भी बड़ा एडवांस हो गया। अब मैं आवाज़ है ना मेरी आवाज़ आप रिकॉर्ड करें, ले जाके AI को दें और उससे कहें कि भाई इसी आवाज़ में ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, तहरीर लिखी है, इस आवाज़ में ही इस पैराग्राफ को बोल दो। वो पैराग्राफ बोलेगा, आवाज़ मेरी लगेगी। तो इसलिए उनसे पूछे बगैर तस्दीक नहीं हो सकती। लेकिन अगर उनसे ये बात हुई भी है तो वो उनकी सबकत लिसानी है या गलती कह लें।
تو ایسی کوئی بات بائبل میں بھی نہیں ہے، اور امام احمد رضا خان صاحب نے بھی نہیں کہی ایسی کوئی بات، اس لیے میں نے اس کو چیلنج دیا ہے۔ باقی آپ بھی اس طرح کی بات ہو، جب مرزیوں کا تو کام ہے ہر بات میں، دیکھیں جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے سے باز نہیں آتے، آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کسی عالم